So ninth class, welcome. Today we are going to discuss the next category of the forest, that is the thorn forest and shrubs. So let's start thorn forest and shrubs. Before starting this type of category of forest, let me discuss with you. Okay, in the last video, I told you about the tropical deciduous forest. We discussed about the evergreen forest. So today we are discussing about the thorn forest and the shrubs. So listen carefully, and in the previous video I told you we are discussing about the forest, and you can see, and there is a decreasing in the rainfall pattern also. They all are categorized in the decreasing order of their rainfall. So today we are starting about the thorn forest and the shrubs. The region with less than 70 centimeter of rainfall. These are the reason, or these types of forests are found where less than 70 centimeter of rainfall is there. The natural vegetation consists of thorny trees, bushes, और यहाँ जो है वो आपके थॉर्नी ट्रीज, मतलब जिनमें थॉर्न्स, कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह, जो ऐसे पेड़ जिनके लीव्स जो हैं वो थोड़े छोटे हैं, शॉर्ट होते हैं, और दे आर हैविंग स्पाइंस, और उनके अंदर कांटे वगैरह मिलते हैं, सो दैट दे कैन reduce the rate of evaporation in the dry season. This type of vegetation is found in the northwestern part of the country, mainly northwestern part of the country, including semi-arid area of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana. So palm, acacians, euphorbias and cacti are the main plant species. So please underline the area where they are found, and the which type of trees are found in these areas. You can here it is written the palm leaves, the acacia leaves, and these are the mainly plants which are found in this region. Trees are scattered and have long roots penetrate deep into the soil in order to get moisture. इनकी जो roots हैं they are deep penetrate, वो बहुत गहरी होती है ताकि वो काफ़ी नीचे से भी जो है वो moisture या पानी जो है वो ले सके. द स्टेम आर सेकुलेंट एंड कंजर्व वाटर. जो स्टेम है वो पानी को सेकुलेंट करते हैं, लेते हैं. लीव्स आर मोस्टली थिक. लीव्स जो है वो भी थिक है. एंड द स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, और साइज में भी छोटे होते हैं ताकि वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को जो है वो कम कर सके. दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड शर्ब्स इन द एरिड एरियाज. कहता है दीज फॉरेस्ट गिव वे, मतलब इन्हीं ट्रीज से जो शर्ब्स और एरिड एरिया के अंदर जो है वो शर्ब्स वगैरह उग जाती हैं. इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर फाउंड रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्व्स, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स. दीज आर द mainly wildlife which is found in these areas. So let's move on the next page. So here in the next category you will read about the montane forest. So montane forest is another name of mountain forest. So listen carefully. In mountain areas, the decrease in temperature with increased altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. In mountain areas, the decrease in temperature, जैसे जैसे हम माउंटेनियस एरिया में जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है, एंड इंक्रीज एल्टीट्यूड, और हाइट जो होती है हाइट के बढ़ने के साथ साथ लीड्स टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. उससे नेचुरल वेजिटेशन है वो भी आपकी चेंज होती जाएंगी. एज सच देर इज़ ए सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन सम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन. और जैसे जैसे आप हाईएस्ट रेंज पर जाते जाएंगे तो ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन की ओर, ट्रॉपिकल एरिया जहाँ सम सनलाइट्स आर देयर, बट टुंड्रा रीजन वेयर कम्प्लीटली कवर्ड विद द स्नो और एट्सेट्रा. सो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो वहाँ धीरे धीरे खत्म होती जाती है. द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर. द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जो टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, जो वेट गीले फॉरेस्ट जो मिलेंगे वो आपको जहाँ बारिश वगैरह है कुछ, वो 100 to 200 मीटर की हाइट पर मिलेंगे. एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट predominate
मीन्स दीज टाइप ऑफ ट्रीज आर देयर, मतलब यहाँ आपको ब्रॉड लीव्स के ट्रीज जो है वो ओक और चेस्टनट जैसे जो है वो 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर मिलेंगे, बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर, मतलब 1500 से 3000 की मीटर पर आपको अलग जो है वो टाइप्स के फॉरेस्ट मिलेंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफिरस, जो टेम्परेट फॉरेस्ट है उसमें आपके कॉनिफिरस ट्रीज जो है लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस एंड सेडर आर फाउंड हेयर, वो यहाँ आपको इस तरह के ट्रीज जो है वो मिलेंगे जो 1500 से 3000 मीटर की हाइट पर मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय, हिमालय की जो साउदर्न स्लोप्स है यानी कि निचली जो ढालदार इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के पेड़ मिलेंगे आपको। हैविंग हाइट एल्टीट्यूड इन द साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एट द हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉमन, जैसे जैसे आप हाइट पर बढ़ते जाएंगे तो ट्रीज़ की हाइट जो है, और मतलब माउंटेन्स की हाइट पर बढ़ेंगे तो ट्रीज़ की हाइट जो है वो और छोटे होते जाएंगे, और एटलीस्ट लास्ट जो है वो ग्रासलैंड ही वहाँ आ जाएंगे। एट द हाइट एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू द एल्पाइन वेजिटेशन, और 3600 मीटर की हाइट के ऊपर जो है वो आपको सिर्फ एल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी, जिसमें सिल्वर फर, जूनिफर्स, पाइन्स एंड बर्चीज आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, मतलब यही फॉरेस्ट में मेनली ये जो ट्रीज है वो आपके मिलेंगे। हाउ एवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टन्ड एज दे approach the snow line, ultimately through shrubs and scrubs they merge into the alpine grassland, धीरे धीरे जो और हाइट वगैरह जाते हैं तो ये भी जो है वो shrubs और scrub में जो है वो रह जाती हैं। दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड, और उसके बाद अल्पाइन जो है वो ग्रासलैंड है और उसमें कवर्ड हो जाती हैं या उसी में रह जाती हैं। दीज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब जो भेड़े वगैरह चराने के लिए जो लोग होते हैं जो हाइट के ऊपर या हिमालय माउंटेनियस एरिया में जो भेड़ बकरियां चराते हैं, जैसे कि द गुज्जर बकरवाल्स, द गुज्जर्स हैं, द बकरवाल्स हैं, ये कुछ नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो घुमंतू जिनको बोलते हैं और जो भेड़े बकरियां चरवाते हैं, वो अपनी भेड़ बकरियों को इस एरिया इस हाइट तक ले जाके उनको सिर्फ घास वगैरह जो मोसिस और लिंचन पार्ट है वो इस टुंड्रा वेजिटेशन में, तो वो उनको लेके जाती है खिलाने के लिए, घुमाने के लिए, या ताकि वो इस ग्रासेस को खा सकें। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दोज एरियाज आर कश्मीर स्टैग, कश्मीर का जो हिरन है, स्पॉटेड डियर है, वाइल्ड शीप है, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न, वाइल्ड ibex, bear and rare red panda, sheep and goats with thick hair, मतलब these types of this type of animals or mainly this type of wild animals are found in these areas.